الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان تجوید کے اس پروگرام میں آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے، اور اس درس میں آج ہم جانیں گے ایک امپورٹنٹ قاعدہ جس کو ہم نام دیتے ہیں اجتماعی ساکنین. اجتماعی ساکنین کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے عربک میں یا قرآن عظیم میں دو ساکن حروف ایک ساتھ ہو، یعنی پائی در پر ایک ساکن کے بعد دوسرا ساکن آئے، اس کو ہم نام دیتے ہیں اجتماعی ساکنین. اب ہم دیکھیں گے اجتماعی ساکنین جب ہوتے ہیں، یعنی اجتماع مطلب میٹنگ، یعنی دو ساکن آپس میں مل جاتے ہیں، تو اس میں کیا قاعدہ ہے، تجویدی قاعدہ کیا ہے، آج کے درس میں آپ یہی جانیں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، عربی میں ساکنین کا جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دو ساکن، اور اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. تو اجتماع ساکنین کا مطلب ہوتا ہے جب دو ساکنوں کا ایک جمع ہونا آپ پائیں گے، تو اس کی آپ دو صورتیں دیکھیں. سب سے پہلے صورت ہے جب دونوں ساکن ایک کلمے میں جمع ہو اور پہلا ساکن مدہ ہو، خواہ دوسرا ساکن اصلی ہو، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آنا. اسی طرح دابتن. یا ہمارے پاس دوسری کنڈیشن ہے کہ دوسرا جو ساکن ہو وہ عارضی ہو، جیسا کہ ہم وقفی حالت میں دیکھتے ہیں یعملون. جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخر میں نون کو ہم ساکن بناتے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا یعلمون. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا واو ساکن، اس کے بعد نون ساکن. یہ نون ساکن جو ہے یہ عارضی طور پہ یہاں پر سکون آیا. اسی طرح تکذبانی اصل میں تھا، مگر ہم وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں تکذبان. آپ نے دیکھا نون کو ہم نے ساکن بنایا. اسی طرح قدیرن ہے، اس کو بھی ہم نے بنایا قدیر، را کو ساکن بنایا، یا بھی ہمارے پاس ساکن بن گیا. تو ایسی کنڈیشن میں جب ہمارے پاس وقف کی صورت میں یعنی دو ساکن ہو، ایک ساکن یعنی ایک ساکن حرف پہ ہمارے پاس مدہ ہو، اور اس کے بعد جو دوسرا ساکن ہو چاہے وہ اصلی ہو یا چاہے وہ عارضی ہو، ایسے اجتماع ساکنین کو ہم کہتے ہیں علی حدہ. علی حدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس صورت میں کوئی بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں کسی بھی تبدیلی کو اس جگہ کرنے کی ضرورت یہ ہے. تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، مگر یہ صورت ہمیشہ وقف میں ہی ہوتی ہے، اور جائز ہے وصل میں نہیں ہوتی ہے، جیسے قدر، عسر یا ذکر. یعنی عام زبان میں ہم یہ جانیں گے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے دو ساکن ایک ہی لفظ میں ہو، جیسا کہ یہاں میں نے مثالیں دی، چاہے وہ وقف کی صورت میں ہو، یا ہم مثال دیں گے کہ ہمارے پاس پہلا سکون پہ مد ہو اور دوسرا ساکن اس کے بعد فوراً آئے ایک ہی لفظ میں، تو اس کا حکم جو ہے اس کو ہم اجتماع ساکنین علی حدہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسے سکونوں پہ کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی پڑھے جائیں گے جیسا کہ آپ نے وہ دیکھا ہو یا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی وہ پڑھے.
दूसरी कंडीशन है कि जब दोनों साकिनीन जो है, यानी दोनों जो साकिन हमारे पास हरूफ है, ये दो कलमों में है, और पहला जो साकिन है ये पहले कलमे के आखिर में, जबकि दूसरा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है वस्तबका, वस्तबका, उसके बाद अलबाबा, ठीक है, वस्तबका अलबाबा। तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास दो साकिन हो गए, एक तो वस्तबका, ये जो अलिफ पढ़ा गया क्योंकि ये साकिन ही था, उसके बाद अल बाबा में जो ये हमजा, ये जो अलाम पे आप देख रहे हैं, इस पे भी सुकून है। तो साकिन साकिन जमा हो गए, और इस वक्त जो साकिन दो जमा हो गए ये अलग अलग कलमे में है। पहले कलमे के आखिर पर भी सुकून है, दूसरे कलमे के इब्तिदा पे भी सुकून है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे वस्तबक़ल बाबा, वस्तबक़ल बाबा। असल में क्या था ये? वस्तबक़ा अल बाबा। तो अल बाबा के शुरू का जो हमजा है उसको हम कहते हैं हमजा वसली, यानी दरमियान कलाम में आ जाने की वजह से वो हाज़िफ हो गया, जिसकी वजह से दो साकिन जमा होने की सूरत पैदा हो गई। इस तरह के जमा को हम कहते हैं इज्तिमाए साकिनीन अला गैर हद्दिही। ऊपर पहले जो था वो अला हद्दिही था। दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर पेश आई कि हमारे पास दो साकिन जमा हो गए, एक साकिन एक कलमे के आखिर में और दूसरा साकिन दूसरे कलमे के इब्तिदा में, इसको हम कहते हैं इज्तिमाए साकिनीन अला गैर हद्दिही। और इस सूरत में इसी तरह पढ़ना ठीक नहीं होगा, लिहाजा हमें मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से ये दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे। अब उसमें अलग अलग सूरतें हैं, वही सूरतें हम यहाँ जाके एक एक करके सीखेंगे। देखिए, अगर पहला साकिन हर्फ मद्दा हो तो हज़फ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा वस्तबक़ा, ये जो काफ के साथ अलिफ है ये असल में हर्फ मद्दा है, और उसके बाद अल बाबा है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने पहले साकिन को हमने क्या कर दिया, हमने उसको हज़फ किया, और जो काफ है यानी उससे पहले हर्फ में जो ज़बर है या ज़ेर है जो भी है, उसको हमने दूसरे लफ्ज के साथ या दूसरे कलमे के साथ डायरेक्टली मिलाया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। वस्तबक़ा अल बाबा क्या बन गया? वस्तबक़ल बाबा। तो बीच में जो हमारे पास हमजा है जिसको हम हमज़तुल वसल कहते हैं वो गिर गया। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है फी अल अर्दी। अब क्या बनेगा? फी अल अर्दी क्या बनेगा? हमारे पास फी अल अरबी बन जाएगा फिल अरबी। हमने या को भी हटाया, और हमजतुल वसल जो था यानी बीच में जो हमजा था, ये जो यहाँ पर आप अल अरबी का अलिफ देख रहे हैं ये असल में हमजा था, इसको भी हमने हज़फ कर दिया। तो पहली कंडीशन ये है कि जब भी इज्तिमाए साकिनीन अला गैर हद्दिही होगा, अला गैर हद्दिही मतलब कि हमारे पास दो कलमों में साकिनीन जमा होंगे, पहले कलमे के आखिर में और दूसरे कलमे के इब्तिदा में, उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें हज़फ करेंगे, यानी पहले हरफ के साकिन को सुकून के साथ हम हज़फ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वस्तबक़ा में ये जो अलिफ था उस पर सुकून था और उसको हमने हज़फ किया, और बीच में जो हमज़तुल वसल है उसको भी हज़फ किया, और इस हरफ को डायरेक्टली हमने लाम के साथ मिलाया। इसी तरह फिल अर्दी में फी और अर्दी में अलिफ जो था जिसपे ज़बर थी वह हमज़तुल वसल जिसको हमने नाम दिया, दोनों को हमने हटा के डायरेक्टली हमने फी को अल अर्दी के लाम के साथ मिला के फिल अर्दी कर दिया। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है कि अगर पहला साकिन मीम जमा हो और उसको हम क्या करेंगे? जुम्मा देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है अलैकुम अल क़ितालु, अलैकुम अल क़ितालु। तो मीम पे हमारा पहला यानी मीम हमारे पहले लफ्ज में मीम पे हमारे पास सुकून है, जज्म है। उसके बाद अल क़िताला में लाम पे हमारे पास जज्म है, हमज़तुल वसल है। उसमें हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में जब हमारे पास आखिर में मीम हो, ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीम को जुम्मा देना पड़ेगा, मैंने पेश देना पड़ेगा। तो आप यहां बता सकते हैं कि हमने अलैकुमुल क़ितालु पढ़ा, अलैकुमल क़ितालु नहीं पढ़ा, जबर नहीं दी, क्योंकि कायदा यह है कि जब भी हमारे पास आखिर में मीम हो, ठीक है, यानी जमा का सेगा हो, क्योंकि अलैकुम जमा का सेगा है, तो उस वक्त जो आखिर में मीम होगा उसको उस पे हम पेश देंगे, उसके बाद वो दूसरे कलमे के लाम के साथ बिल्कुल मिलाएंगे, जैसा कि यहां पर आपने देखा अलैकुमुल क़िताल, असल में था अलैकुम अल क़िताल। तीसरी कंडीशन है कि अगर पहला साकिन वाव लीन हो, ठीक है, अगर पहला साकिन वाव लीन वो भी जमा हो, तो उसे भी हम जुम्मा देंगे। जैसे यहां पर लिखा है वला तख्शौ, वला तख्शौ, असल में था वला तख्शौ, वाव साकिन माकबल जबर, तो वावलीन, फिर था अन्नासा। हमने क्या किया इस कायदे के हिसाब से, क्योंकि वाव लेन आखिर में था, तो हमने क्या किया, उस वाव लेन को, उसका जो सुकून था वो हटा के उस पर हमने पेश दे दिया, और उसको हमने दूसरे कलमे के हर्फ से मिलाया, जैसा कि यहां पर देखिए वला तख्शवुन्नासा, यानी असल में था वला तख्शाउ, फिर था अन्नासा। अब ये वाव पे हमने पेश कैसे लाया, तो कायदा ये है कि जब भी आप वाव लीन देखेंगे उसके बाद वाला दूसरा लफ्ज पे पहले हर्फ पे आप सुकून देखेंगे तो वाव पे ऑटोमेटिकली पेश आएगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा। एक और कंडीशन है कि अगर पहला साकिन मिन का नून हो, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, तो उस नून पे हम जबर देंगे, जैसे असल में था मिन, फिर था अन्नासी, ठीक है। अब मिन अन्नासी पे जब लास्ट में नून का सुकून है, तो उस सुकून को हम जबर देंगे, तो ये बन जाएगा मिनन्नासी। यानी यहां पर आपने देखा आखिर में हम पेश लाए तख्शवुन्नास, यहां पर आप नून के ऊपर जबर ले आए, तो ये आपकी अपनी मर्जी नहीं है, बल्कि ये तजवीद के कायदे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चूंकि हमारे जब हम कुरान मुसहिफ पढ़ते हैं अपने बरसगीर में, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें ज़बर ज़ेर हमारे उस मुसहिफ में लिखी होती है। मगर आप जब सऊदी अरब में जो कुरान हमारे पास मुसहिफ है, उसमें बहुत सारी जगहों पे ये ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते हैं, खुसूसन सुकून नहीं होता। उस वक्त क्या आएगा, तो ये आप कायदे आप याद रखें कि अगर हमारे पास आखिर में नून होगा सुकून, तो याद रखिएगा वो नून पे जबर आएगा, जैसा कि यहां पर मिसाल है। एक और मिसाल है कि अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम की मीम हो, तो फिर जबर देंगे, जैसा यहां पर है अलिफ लाम मीम, फिर लिखा है अल्लाहु। अगर आप इसको मिलाएंगे, क्योंकि यहां इज्तिमाए साकिनैन हो रहा है, तो मीम पे जबर देंगे, ऐसे पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाहु। तो हमने क्या किया, मीम के जो मीम पे जो तशदीद थी यानी सुकून था, उसको लाम के साथ मिलाने के लिए मीम पे भी जबर दी। एक और कंडीशन है कि अगर इनमें से कोई भी सूरत ना हो, तो साकिन को जेर देंगे। जैसे यहां पर ये चार कंडीशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो जब मीम जमा हो तो उस वक्त जुम्मा देंगे, अगर वाव लीन हो तो उस वक्त भी जुम्मा देंगे, अगर पहला साकिन मिन है तो नून पे जबर देंगे, अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम हो तो मीम पे जबर देंगे। तो ये दो कंडीशन तो आपको याद रह गई। अगर इन चार कंडीशन में कोई कंडीशन ना हो तो याद रखना चाहिए उस वक्त नून को हम साकिन को हम जेर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर था कुल, फिर था अदउल्लाह, कुल अदउल्लाह, ये अद पे हमने हमजतुल वसल पे जबल दे दी। असल में आप देखिए कुल लाम भी साकिन था और ये दाल भी साकिन था, मिलाने की सूरत में हमने क्या किया, इस लाम के नीचे हमने जेर दे दी, हमने पढ़ा कुलिदउल्लाह, कुलिदउल्लाह। तो आप ये कहां से आपको पता चलेगा कि इस्लाम पे जबर देना था या पेश देना था या जेर देनी थी। असल में यहाँ के कायदे से आपको पता चला किस वक्त हम जबर देते हैं, किस वक्त हम पेश देते हैं मिलाने की सूरत में, और किस वक्त हम जेर देते हैं। मैं आपको बताता चलूं, हम पेश देंगे
जब भी आखिर में हमारे पास मीम की जमा हो या वाव लीन हो, उस वक्त हम पेश देते हैं आखिरी हरफ में दूसरे हरफ के साथ मिलाने में इज्तिमाई साकिनीन के कायदे में। और अगर हमारे पास आखिर में मिन हो, उसका नून हो, या अलिफ लाम मीम का मीम हो, तो दोनों पे हम ज़बर देंगे। अगर ये दो कंडीशन हमारे पास ना हो तो ऑटोमेटिकली आखिरी हरफ को, पहले कलमे के आखिरी हरफ को हम यहाँ पर आपने देखा है उसको हम जेर देंगे, जैसा कि आपने यहाँ दिखा कुल अदउल्लाह बनेगा कुल अदउल्लाह। इसी तरह आओ अदउर्रहमान बन जाएगा अविद अविदउर्रहमान। तो यहाँ पर वाव पे जेर कैसे आई, यहाँ पर लाम के ऊपर कैसे जेर आई, तो ये आपको इस कायदे से, इज्तिमाई साकिनीन के इस कायदे से पता चलता है। आखिर में एक और चीज कि अगर एक कलमे के आखिर में तनवीन हो और दूसरे के शुरू में हमजा वसल हो, तो हमजा वसल हज़फ होगा और तनवीन के सबब पैदा होने वाले नून को कसरा देंगे। इस नून को हम कहते हैं नून कुतनी। याद रखिए, इस नून को हम कहते हैं नून कुतनी। कुरान मजीद में ऐसे नून बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। मैं मिसालें कुछ दूंगा, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, असल में यहाँ पर जो लफ्ज था वो था कदीरुन, फिर अल्लदी था। कदीरुन यानी दो पेश था, फिर अल्लदी। इस सूरत में जब हमारे पास तनवीन होगा, उसके बाद वाला जो लफ्ज है वो जज्म से या सुकून से शुरू होगा, क्योंकि तशदीद भी सुकून ही की एक किस्म है। इस सूरत में हमें क्या करना होगा कि पहले हर्फ में जो तनवीन है उसमें एक हरकत को हटा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कदीरुन था, कदीरुन के बजाय कदीरु रखेंगे। यानी दूसरा जो इसका पेश, क्योंकि असल में दो पेश थे यहाँ पर, ठीक है, एक पेश को हम हटा देंगे और उस पेश की जगह हम नून जेर नि लाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? लफ्ज था कदीरुन अल्लदी, कदीरुन अल्लदी, पढ़ेंगे कैसे? कदीरु निल्लदी, कदीरु निल्लदी। इसको कहते हैं इज्तिमाई साकिनैन, मतलब दो साकिन जमा हो गए थे, मगर पहला जो साकिन था वो हमारे पास तनवीन का सुकून था। देखिए, कदीरुन ये ऐसे भी पढ़ा जाएगा या ऐसे भी पढ़ा जाएगा, रा नून पेश रुन, तो नून आखिर में है ना सुकून के साथ। दूसरा जो साकिन है वो अल्लदी का, ये जो लाम पे तशदीद है ना, ये भी तो सुकून ही है ना। तो कदीरुन और ये लाम के ऊपर जो तशदीद पे पेश है, तो इसको हम कहेंगे इज्तिमाई साकिनैन। अब ये इज्तिमाई साकिनैन है, ये अला गैर हद्दी ही है, मतलब ये दो अलग अलग कलमों में है, पहले कलमे के आखिर में और दूसरे कलमे के इब्तिदा में, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब कायदा क्या है कि अगर हमारे पास तनवीन हो, दो जबर दो जेर दो पेश, तो तनवीन का एक हरकत हटा देंगे। जैसा कि दो पेश में हमने एक हरकत हटा दी और उस हरकत के बजाय हमने नून जेर के साथ ले आया, जैसे यहां पर हमने पढ़ा। इस नून को हम कहते हैं नून कुतनी। नून कुतनी का मतलब होता है जब भी हम तनवीन को हटा के आखिर में एक ही हरकत रख के दूसरे हरकत को नून जेर नी बना लेते। कदीरु निल्लज़ी। इसी तरह एक और मिसाल है लुमज़तिन, वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिन, लुमज़ा जिसमें पढ़ते हैं ना, असल में है लुमज़तिन, तिन है, तो तिन के बाद यही लाम पे तशदीद है, मगर इनको हमें मिलाना है। कायदा मैंने आपको बताया कि दो पेश दो जबर या दो जेर जब भी आखिर में हो और आपको मिलाना हो ये दूसरे साकिन के साथ, उस वक्त एक हरकत हटा देंगे। पहली सूरत में हमने दो पेश में से एक पेश हटा दिया और दूसरे पेश को हमने नून जेर नी बनाया, नून कुतनी बनाया। दूसरे कंडीशन में दो जेर में से एक जेर हटा दी और दूसरे जेर को नून जेर नी बनाया, तो लुमाज़ाती निल्लज़ी, निल्लज़ी नून कुतनी। तीसरी मिसाल नूहु, फिर देखिए नूहु असल में था नूहुन, नूहुन, फिर देखिए बा पे दूसरा सुकून था, तो दोनों जगह इज्तिमाई साकिनैन बन गए थे। तो क्या करेंगे, नूहुन के बजाय नूहु, एक पेश को हटा देंगे, उस पेश को हम नून जेर नहीं बनाएंगे, बन जाएगा नूहु
निबनहु, निबनहु, ठीक है। एक और मिसाल है खैरन, असल में था खैरन, दो जबर, फिर था यहां पर लाम पे सुकून, क्या पढ़ेंगे? खैरा निल वसियतु, यानी दो जबर में से एक जबर को हटा देंगे और एक जबर को हम नून ज़ेर नि बनाएंगे, बनेगा खैरा निल वसियतु। इसी तरह एक और मिसाल है शाई अन, दो जबर है, उसके बाद यहाँ ता है तशदीद के साथ, तो ये सुकून हो गया। हम पढ़ेंगे शाई अ, एक जबर को हटा के उसके बजाय नून ज़ेर नि लाएंगे, नून कुतनी लाएंगे, तो पढ़ेंगे शाई अ नित्तखज़हा, शाई अ नित्तखज़हा। और ये मिसाल जो है, ये जो इज्तिमाए साकिनैन की ये जो मिसाल है, ये जो कंडीशन है, कुरान मजीद में बहुत जगह इस्तेमाल हुई है, आपको पता होना चाहिए। इस नून को हम नून कुतनी कहते हैं। आम सूरत में आप कहिए, जब भी हमारे पास आखिर में कोई भी तनवीन आए, दो जबर, दो जेर, दो पेश, उसके बाद जो लफ्ज हो उसके इब्तिदा में साकिन हो, सुकून हो, तो उसको हम इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही कहते हैं। उस वक्त क्या होगा कि जो तनवीन का जो एक हरकत होगी, चाहे दो जबर में एक जबर कट जाएगी, दो पेश में एक पेश कट जाएगा, दो जेर में एक जेर कट जाएगी, और इन तीनों सूरतों की सूरत में हम एक जबर, एक जेर या एक पेश को नून जेर नहीं बनाएंगे, जिसको हम नून कुतनी कहते हैं, और उसको हम दूसरे लफ्ज के साथ मिलाएंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा। कुरान मजीद की एक सूरत को हम पढ़ेंगे, उसमें ये मिसाल बहुत ही आसानी के साथ आप पाएंगे, और इससे हमारे पास मसले क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे हम इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून कुतनी के अलावा और भी हम कायदे इस सूरत के पढ़ेंगे। सूरतुल हुमज़ा इस सूरत का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइलुल लिकुल्ली, वाइलुल लिकुल्ली। सबसे पहले देखिए या साकिन है, मा कबर जबर है, तो या लीन बनेगा। लीन का मतलब होता है मलायम आवाज करना, नरम आवाज करना। कैसे पढ़ेंगे? वाई, वाई लुल कुल, दो पेश के बाद लाम आ रहा है, तो हमने इस कायदे को पढ़ा, ये नून का कायदा है, और ये कायदा कहलाता है इदगाम। इदगाम मतलब मिलाना, और इदगाम की दो किस्में हैं नून की, एक है इदगाम बागुन्ना, दूसरा है इदगाम बिला गुन्ना। यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना यानी मिलाने की सूरत में गुन्ना यानी नून में ले जाने की आवाज नहीं होती, नून में, नून की आवाज को हम नाक में नहीं ले जाते। पढ़ेंगे वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल। देखिए असल में था हुमज़तिन, मगर दो जेर के बाद लाम आ रहा है, तो फिर से इदगाम बिला गुन्ना, हुमज़तिल लुमज़ह। अगर आप लुमज़ह पढ़ेंगे तो ता के नीचे जो दो जबर थी वो साकिन बनेगी। अगर आप इसको मिलाएंगे तो हुमज़तिन के बजाय ये देखिए लाम के ऊपर तशदीद है। तशदीद का जो पहला लफ्ज होता है वो सुकून वाला होता है, तो तिन, दो जेर के बाद हमारे पास सुकून आया, साकिन आया, तो कायदा वही होगा नून कुतनी का, या इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दी ही हो गया। तो कायदा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, तिन के बजाय ती पढ़ेंगे, एक जेर को हम हटा देंगे, उसके बजाय हम नून जेर नि लाएंगे, नून कुतनी बनाएंगे, और पढ़ेंगे लुमज़ाती निल्लज़ी, लुमज़ाती निल्लज़ी। ये एक सूरत है। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा लुमज़ह, आपने वक्फ किया, तब यहां पर हम अल्लज़ी पढ़ेंगे, इस अलिफ के ऊपर हम आरजी जबर लाएंगे। जमा मालौं, देखिए दो जबर के बाद वाव आ रहा है, ये नून का कायदा है, इसको कहते हैं इदगाम बागुन्ना। इदगाम का मतलब मिलाना, गुन्ना भी हो रहा है, नाक के बांसे में आवाज हम रख रहे हैं, तो पढ़ेंगे मालौं वअद्ददह, मालौं, इदगाम बागुन्ना, इदगाम गुन्ने के साथ, ये नून का कायदा है। यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, वअद्दह पढ़िए या वअद्दहू पढ़िए, क्योंकि देखिए वक्फ की हालत में यानी आयत की हालत में हम आखिर में रुकते हैं, ठहरते हैं, साकिन बनाते हैं, मगर जब आयत के ऊपर ये लाम अलिफ ला बना हो तो आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप ठहरे या ना ठहरे। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमें
اسی وقف اور وصل کے اوپر ہوگا، تو اس وقت آپ کو ہم زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری آیت یحسبو، ہا کا مخرج یاد رکھیے گا، وسط حلق یعنی گلے کا بیچ والا حصہ جہاں سے ہا ادا ہو رہا ہے، سین کو تیز پڑھیں گے، ان کی صفیریہ میں ہے۔ ان، نون پہ تشدید ہے تو نون پہ غنہ ہوگا، غین، غین نون ہا غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک کے بانسے میں خیشوم میں آواز کو لے آنا۔ ما لہو اخلدہ، ما لہو، دیکھیں یہ الٹا پیش جو ہے یہ واو ساکن ہے، کیونکہ الٹا پیش واو ساکن کے برابر ہے، تو یہ مد اصلی ہونا چاہیے، مگر اس کے بعد اخلدہ کی جو الف آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ حمزہ ہے، حرف مد کے بعد سبب مد الگ الگ کلمے میں ہے، یہ مد منفصل ہے، مد منفصل، فاصلہ ہے ان کے بیچ میں۔ جب حرف مد ایک کلمے میں، سبب مد اس کے فوراً بعد دوسرے کلمے میں ہو، ایسے مد فرعی کو ہم کہتے ہیں مد منفصل یا مد جائز۔ لمبا کریں گے، اخلدہ، خا کو پور پڑھیے گا، خا کا مخرج ہے ادنا حلق، یعنی جو حلق کا پہلا حصہ ہے وہاں سے خا ادا ہو رہا ہے۔ کلا لیمبذن، دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نون کا قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، نون کی آواز کو ہم میم میں بدلیں گے، اور یہاں پر چھوٹی میم اسی چیز کو دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے بتائی گئی ہے اور لکھی گئی ہے۔ لَيُم، دیکھیں میم کی آواز نکالنی، حالانکہ نون ہے یہاں پر۔ لَيُمبَذَنَّ، دال کو نرم پڑھیے، نون پہ تشدید ہے تو نون پہ غنہ ہوگا۔ فی الحطمہ، ہا کو وسط حلق سے، تو کو ہم پر پڑھیں گے، تو پہ صفت اطباق بھی ہوتی ہے، اطباق کا مطلب ہوتا ہے زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کی طرف ہم لے جاتے ہیں۔ حطمہ، حطمہ، وما، یہاں پر مد منفصل ہے کیونکہ وما کی الف حرف مد، اور ادراکا کا جو یہ حمزہ ہے بشر لیے الف، یہ سبب مد الگ الگ کلمے میں، یہ مد فرعی کی قسم ہے، اور اس قسم کو کہتے ہیں مد منفصل، فاصلہ ہے۔ ادراکا، اد دال ساکن، اس پہ قلقلہ ہوگا، یہ 5 حروف قاف تا با جیم دال قطبی جد میں کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ ادراکا، دیکھیں را کا قاعدہ ہم نے پڑھا، جب بھی را کے ساتھ الف ہو زبر ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ مل حطمہ، اوپر کی طرح یہ بھی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، دیکھیں جو لام ہے نا، لامی جلالہ، اللہ کا لام، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے پیش یا زبر ہو تو لامی جلالہ یا اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ موقدہ، منہ واو ساکن ماقبل پیش مد اصلی، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ قدہ، قاف کو پر پڑھیے گا، آپ کے پاس چوائس ہے کہ قدہ پڑھیں گے تو رکیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھ سکتے ہیں قدہ تلتی۔ اگر آپ ٹھہریں گے قدہ پڑھیں گے تو یہاں پر ہم عارضی زبر لائیں گے، پڑھیں گے التی، دونوں صورتیں جائز ہے۔ تطلع، تا کو موٹا پڑھیں گے۔ علی الافئدہ، عین کو مخرج سے ادا کریں خصوصیت کے ساتھ، وسط حلق اس کا مخرج ہے۔ علی الافئدہ، انہا، نون پہ غنہ کریں گے، ناک کے بانسے میں اس کو رکھیں گے۔ علیکم مؤصدہ، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہ میم کا قاعدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ادغام، ادغام شفوی۔ حمزہ پہ جب بھی آپ دیکھیں گے جزم ہو، سکون ہو تو حمزہ پہ جھٹکا ہوگا۔ صادہ، صاد کو پر پڑھیں گے۔ فی عمد، دو زیر کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام بغنہ، عمد، ادغام بغنہ، نون کا قاعدہ، ممددہ، ممددہ، یہاں پہ بھی وقف کریں گے۔ تو ہم اب کیا کریں گے کہ ہر ایک لیکچر میں ایک ایک یا دو صورتیں پڑھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے جتنے بھی قاعدے ہم نے تجوید کے پڑھے ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو تجوید کے لیکچرز میں آخری لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد ہم اپنا نیا سیکشن شروع کریں گے، بیسک گرامر۔
तो 14 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह तजवीद को फुल करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर वाले सेक्शन को पढ़ेंगे और एक एक सूरता या एक एक दो दो आयतें या तीन तीन आयतें हम उठाया करेंगे और उनका तजवीदी एनालिसिस भी साथ साथ में करेंगे, ताकि हमारा जो तजवीद का जो कोर्स था 14 लेक्चर्स का वो भी हमारा कंटिन्यूअस रहे। आपसे गुजारिश है कि आप जो भी नोट्स हमने बनाए हैं, जो भी वीडियोस हम आपको शेयर करते हैं व्हाट्सएप में, उनको देखा करें, उसके बाद उसके नोट्स बनाएं और फिर कोशिश करें कि इसी की तरह इसको रिपीट किया करें। ठीक है, तो इस तरह से आज का हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी काविशों को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। 14वां लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा तजवीद का, उसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रामर शुरू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।